Yes, good morning, guys. So we continue with our journey on secretarial practice. Secretarial practice की हमारी ये जो जर्नी है वो हम स्टार्ट करते हैं. डोर क्लोज कर दीजिए. स्लोली धीरे से. जस्ट मूव योर बेंच aside. Slowly धीरे से. In yesterday's lecture we have completed our discussion on particular point, that is voting at the meeting. Now the final point which is to be talked about is the resolution. The resolution of the meeting. Now resolution is all what is decided on a particular matter. All what is decided on a particular matter, right? So whenever a motion is put to vote, now after voting, whatever result has come, as per that we will have our resolution. The resolutions are passed either by ordinary resolution. When the resolutions are such which are of strategic importance, they are passed as per the course of decisions which are major for the business, have to be passed as per the special resolution. We already know that more than 50% of voting is required to pass a ordinary resolution to prove a simple majority. But for passing a special resolution, we need a voting of more than 75%. We'll have first a reading, simple reading of the text. Then I'll try to elaborate the concept thoroughly. Okay, let's start. Right. Resolution. A motion is accepted in the meeting. Motion accepted in the meeting is called as a resolution. Whenever we put something to discussion, and whenever it is accepted by the majority, it takes the form of a resolution. जब कभी भी एजेंडा में कोई पॉइंट होता है, उस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होता है, और जिस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है वो क्या होता है? मोशन, राइट? सो द सॉन्ग विच इज प्लेड इज द करंट सॉन्ग. इन द सेम वे जिस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हो रहा है वो क्या होता है? मोशन, राइट? इसी को चेंज करने के लिए हमने अलग अलग टूल देखे थे, फॉर्मल टूल्स. कौन से थे वो? क्लोजर मोशन, प्रीवियस क्वेश्चन मोशन, नेक्स्ट मोशन एंड सब्सटैंटिव मोशन. तो पीछे रह गया, एक और रहा बीच में, एडजर्न्ड मोशन, राइट? फिर उसके अलावा एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग मोशन, राइट? और फिर बाद में सब्सटैंटिव मोशन, राइट? सो अब रेजोल्यूशन की जब हम बात करेंगे, जब कभी भी किसी मोशन के ऊपर हम जो फाइनल वोटिंग कराते हैं, और जिन जिन रेजोल्यूशंस, जिन जिन मुद्दों के ऊपर, जिन जिन मोशंस के ऊपर एक्सेप्टेंस दी जा रही है इन द मीटिंग, दोज आर हैविंग द वोटिंग और द मेजॉरिटी एज रिक्वायर्ड, टेक द फॉर्म ऑफ अ resolution. Take the form of resolution, and this resolution is a point to say that particular decision taken is full and final, right? A resolution is a formal and a final decision of the meeting. So whatever the final decisions we have taken in a particular general meeting can be read out with the resolutions which have been passed at the meeting. Let's say there is expansion decision, and in all we had decided, as per the voting it is being decided, that we are not going to go into expansion. We'll be going with our pharmaceutical business only. The corona and COVID situation is not such that we expand into some other business and try, because the business might affect and we might generate losses, or we might get into losses. So we collectively, all of us, haven't given our voting or favors of votes in the particular decision, and the voting, let's say, has been around 30%. The voting has been 30%. That means all the members have not favored the particular point in the agenda of expansion from pharmaceutical business to fertilizer business. So what is the final call on the resolution? The resolution will state that the final decision taken at the annual general meeting of the members is that the expansion point as mentioned in the agenda is to be held cancelled. Further discussion of same will be considered in the next annual general meeting. This can be the final resolution. So what we can point out in the resolution कि ये जो एक्सपांशन का जो पॉइंट था, इसके ऊपर निर्णय लिया गया है कि किसी भी तरह का एक्सपांशन ये साल कंपनी नहीं करने वाली है. लेट्स टेक अनदर पॉइंट. अनदर पॉइंट में ये था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैड proposed a dividend of 10%. Board of directors had proposed a dividend of 10%. डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, ये तय करने का अधिकार हमारे कंपनी में किसके पास होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास. डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट में चल रही हो.
What is dividend? The smallest part of the profit which a shareholder gets in the form of return, or part of the profit which he gets from the entire profit of the company is called as dividend. पूरा जो कैपिटल होता है कंपनी का उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल. And the smallest part of the share capital is called as a share of a company. The smallest part of the capital is called as the share of the company. In the same manner, the company has the entire profit, and the smallest of the profit which is distributed to the shareholder is called as dividend. Dividend to be declared or not declared is to be decided by the board of directors. Dividend cannot be declared if the company is generating losses. Dividend is to be paid only when the company is making profits, right? Dividend is to be declared only if the company is making profits, right? Now, the board of directors have taken a decision that they want to declare a dividend of 10%. The same point was passed and a resolution was passed in the board meeting. The same has been put up to acceptance and finalization in the general meeting. अब हम तो मेंबर्स हैं, हमें तो डिविडेंड चाहिए, हम क्यों मना करेंगे? So we unanimously, यानी 100% of us have voted in favor of the resolution, or in the favor of that point of declaration of dividend. So whenever we'll have the resolution for declaration of dividend, what it will state? The resolution henceforth is passed regarding payment of dividend at 10% as been prescribed by the board of directors, and the same is also accepted at the annual general meeting by 100% majority. So उस resolution को पढ़ के हमें ये समझ में आएगा कि ये जो dividend का decision है इसके ऊपर finalization हो चुका है, और final call ये है कि ये जो decision है ये मंजूर किया गया है. Yes or no? Right? So resolution हमें ये बताता है कि किसी भी मीटिंग में क्या क्या फाइनल डिसीजंस हुए हैं. हमारे मीटिंग में अभी हमने 2 फाइनल डिसीजन लिए. एक लिया एक्सपेंशन का, जहां हमने डिसाइड किया कि एक्सपेंशन हम नहीं करेंगे, सॉरी डाइवर्सिफिकेशन हम नहीं करेंगे, एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन हम नहीं करेंगे. यस और नो? एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन हम नहीं करेंगे. दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? डिविडेंड जो कंपनी डिक्लेयर कर रही है वो एनुअल जनरल मीटिंग में हमने एक्सेप्ट किया, एंड द सेम हैज टू बी डिक्लेयर्ड, राइट? नो डिस्कशन इज अलाउड ऑन द रेजोल्यूशन. किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन जो है वो अलाउड नहीं होती. किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन जो है वो अलाउड नहीं होता, बिकॉज इट्स अ फाइनल डिसीजन. एक बार फाइनल डिसीजन होने के बाद वापस उसके ऊपर चर्चा करके कुछ मतलब है क्या? नहीं, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज अ मोशन, इट इज बीइंग पुट टू वोट, आफ्टर वोटिंग इज बीइंग टेकन, फाइनल डिसीजन हैज बीन टेकन, and after that we are preparing the resolution of the meeting. That time how can you again go and back and say let's have a discussion again on the expansion thing or the diversification thing? Will it be correct? No. जो करना था तब मीटिंग में ही करना था. मीटिंग होने के बाद, सब वोटिंग होने के बाद, डिसीजन होने के बाद, रेजोल्यूशन के बाद वापस डिस्कशन करने का कोई मुद्दा बनता है क्या? नहीं. फिर अननेसेसरी चुप कुछ तो चीज करना है, इसलिए करना है, तो दैट डजंट मेक अ सेंस, राइट? हेंस at the time of preparing of resolution there are no discussion entertained. Every resolution should be recorded in the minutes book. हर एक पॉइंट जो एजेंडा में जो हमने डिस्कस किया है, जो मोशन में लाकर डिस्कशन का पार्ट बनता है, जिसके ऊपर वोटिंग होती है, हर एक पॉइंट का एक अपना रेजोल्यूशन बनता है. जैसे डिविडेंड का अपना एक रेजोल्यूशन बनेगा, डाइवर्सिफिकेशन का अपना एक रेजोल्यूशन बनेगा, एक्सपेंशन का अपना बनेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स का अपना बनेगा, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स का अपना बनेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. जितना भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी पॉइंट्स हम मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं एज पर द एजेंडा, व्हाट आर पॉइंट्स आर डिस्कस्ड इन द मीटिंग, व्हाटएवर आर मेंशन्ड इन द एजेंडा. एजेंडा में जितनी चीजें दी होती है उतने का ही हम डिस्कशन जो है वो मीटिंग में करते हैं, है या ना? जो जो चीजें मीटिंग में दी गई, एजेंडा में दी गई होती है, उसी का हम चर्चा करते हैं. और हर वो पॉइंट जो एजेंडा का पार्ट है, जिसके ऊपर मीटिंग में चर्चा हो चुकी है, वो सारे, जिसके ऊपर वोटिंग हो चुकी है, वो सारे फाइनल डिसीजंस का हम हर एक निर्णय का एक स्पेशल रेजोल्यूशन बनाते हैं. नॉट स्पेशल रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन बनाते हैं. एक क्या बनाते हैं? रेजोल्यूशन. सो रेजोल्यूशन हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी पॉइंट इन द एजेंडा. फॉर एवरी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन विच इज डिस्कस्ड इन द मीटिंग वी विल श्योरली नीड टू हैव अ रेजोल्यूशन, ताकि फिर हम समझ में आए कि, समझ लो एजेंडा का जो पॉइंट नंबर 5 है डिविडेंड का, इसके ऊपर क्या डिसीजन हुआ है ये देखने के लिए हमें उसका रेजोल्यूशन रेफर करना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 6 इज रिगार्डिंग डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल बिजनेस टू फर्टिलाइजर बिजनेस. सो एजेंडा के पॉइंट नंबर 6 पे क्या फाइनल डिसीजन हुआ है, इसके ऊपर अगर हमें देखना है तो हमें उसका रेजोल्यूशन जो है उसे रेफर करना पड़ेगा. सो इजीली एनी मेंबर कैन रीड द रेजोल्यूशन एंड रेफर व्हाट इज डिसीजन टेकन बाय द कंपनी और द मेंबर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग, राइट? Every resolution should be brief, framed with affirmative form. अब मान लो जो हम रेजोल्यूशन बना रहे हैं रिगार्डिंग डाइवर्सिफिकेशन, वहां पे जितने लोगों ने जितने पॉइंट, जितने मुद्दे बोले, जितनी चर्चा हुई, सब के सब अगर मैं लिखता बैठूं
तो एक एक रेजोल्यूशन, एक एक पॉइंट का रेजोल्यूशन 5-5, 6-6, 10-10, 12-12 पन्ने का हो जाएगा. सो विल इट गिव अ क्रक्स इंफॉर्मेशन इमीडिएटली? अब समझ लो मैं मीटिंग में प्रेजेंट नहीं था, एंड आफ्टर कमिंग बैक फॉर आई वाज आउट स्टेशन ड्यू टू सम रीजन, लेकिन आउट स्टेशन से वापस आने के बाद जो मीटिंग में निर्णय हुए, जो फाइनल डिसीजंस हुए, वो मैं पढ़ना चाहता हूं और जानना चाहता हूं क्या क्या निर्णय कंपनी में मेरे पीठ पीछे हुए हैं. और अगर रेजोल्यूशन में पढ़ने की शुरुआत करता हूं और देखता हूं एक एक पॉइंट के ऊपर 12-12, 15-15, 20-20 पन्नों का उसके ऊपर जो है इंफॉर्मेशन दिया गया है, डू यू थिंक आई विल बी एबल टू हैव अ करेक्ट आइडिया व्हाट एवर डिसीजन इज टेकन? इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर एवरीवन. इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर एवरीवन. जो कुछ भी निर्णय हुआ फटाफट एकदम शॉर्ट में 2-4 लाइन में उसको खत्म करना है. जो निर्णय लिया है उसके ऊपर अगर लंबा चौड़ा लेख लिखते बैठे, आंसर इन डिटेल की तरह 8-8, 10-10 पन्नों का लिखते बैठोगे तो उसमें कोई सेंस नहीं बनता. बात समझ में आ रही है? Hence the resolution which is being prepared on the every point in the agenda should be brief and summarized enough. Number of members voting in favor and against the resolution should also be mentioned. जैसे कि डिविडेंड के जो हमारा रेजोल्यूशन था उसके अंदर कितने लोगों ने वोटिंग किया? 100%. द मेजोरिटी इज प्रूव्ड बाय 100%. यस और नो? राइट. लेकिन एक्सपेंशन में हम डाइवर्सिफिकेशन में हमने कंसिडरेशन क्या किया है? फेवर में कितने हैं? 30%. अगेंस्ट में कितने हैं? 70%. तो हर वो रेजोल्यूशन पे वोटिंग पैटर्न फेवर और अगेंस्ट में कितना है वो उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए ऑन दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन. जब हम रेजोल्यूशन का इंफॉर्मेशन लिखेंगे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे हम डिविडेंड का लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेट्स से द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% इन द बोर्ड मीटिंग व्हिच वाज पुट टू डिस्कशन इन द एनुअल जनरल मीटिंग. henceforth it is decided by the members and the resolution is passed by the majority where the voting in favor of the decision is 100% and voting against and there is no vote casted against the particular point or this resolution. इस तरह से हमें 2-3 लाइन के अंदर पूरा रेजोल्यूशन का जो फॉर्मेट है उसे कंप्लीट करना है. बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, रेजोल्यूशन शुड बी ड्राफ्टेड इन द प्रेजेंट टेंस. रेजोल्यूशन कांट, कैन नॉट बी अल्टर्ड. रेजोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है. आई होप इंग्लिश इतनी तो आती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. हो के नहीं? आता नहीं आता खूब से? व्हाट इज पास्ट? हाँ, भूतकाल. तो जो हो गया वो छोड़ दो, अब जो चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दो. अब क्या चल रहा है? अब सब ऑफलाइन चल रहा है, सब सिस्टमैटिक चल रहा है. तो पीछे जो टर्म एग्जाम में हो गया वो भूल जाओ. अब आने वाले फेब में, मार्च में जब मैं सेकंड टर्म रखूंगा, लेकिन उसके अंदर सभी लोगों का परफॉर्मेंस ठीक तरह से होना चाहिए, तब देने के लिए किसी के पास एक्सक्यूज नहीं होगा. जो हो गया वो भूल जाओ, जो आने वाला है उसके ऊपर ध्यान दो. लेकिन वो जो आने वाला है उसके ऊपर अगर ध्यान देना है, वहां कुछ प्रूव करना है, तो अपना प्रेजेंट जो है वो सही करना पड़ेगा. सही है ना? सो भविष्य का सोचो, लेकिन जो भविष्य के बारे में जो सोच रहे हो उसे अगर अचीव करना है तो अपने आज के ऊपर ध्यान देना होगा. प्रेम, समझा ना? तुम सोच रहे हो कि मैं 4-5 साल बाद, 7 साल बाद इजीली सीए बन जाऊंगा और आज मैं इधर उधर घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, ये सब कर रहा हूं, तो इससे कुछ नहीं होता बेटा. इससे कुछ नहीं, तुम यहीं रह जाओगे इतने में. तो जो आगे का सोच रहे हो उसके हिसाब से अपने एक्शन आज के होने चाहिए. जादव, फड़े, आनंद, सभी लोग, बॉयज, तिवारी, माटरा, जो आप आगे का सोच रहे हो वो आगे का जो सोच जो आपकी है, जो थॉट आपका है, खुद को मर्सिडीज में देखते हो, बीएमडब्ल्यू में देखते हो, व्हाट्सोएवर, उस सपनों को अगर साकार करना है तो अपने आज को सही ढंग से जीना सीखो. योर प्रेजेंट हैज टू बी करेक्ट and the resolution has to be drafted in your present tense. It is being put to discussion. ऐसा जो पूरा उसका जो फॉर्मेट होगा जिसमें हम लिखेंगे, it is to be written only in the present tense. Nothing is to be written in the past tense. Was, done, ऐसा नहीं होना चाहिए. Right? The resolution was put to vote. The resolution is put to vote. How it is to be framed? It is to be framed in the present tense. And resolution should be drafted in the present tense and resolution can't be altered. जो निर्णय हो चुका है, जो फाइनल है, उसको चेंज कर सकता है क्या कोई? नो. इसीलिए रेजोल्यूशंस कैन नॉट बी अल्टर्ड. अभी ओके विद इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोल्यूशन? किसी कुछ पूछना है? नहीं, नाम नहीं लिखने पड़ते. नाम लिखने की जरूरत नहीं है. नाम लिखते बैठेंगे तो वापस वही होगा ना, फिर रेजोल्यूशन कितना लंबा हो जाएगा. मान लो 5,000 लोग मीटिंग अटेंड कर, 5,000 लोगों के नाम लिखते बैठा तो फिर कहाँ जगह होगी. तो 2-4 रेजोल्यूशन में सिर्फ समरी और पूरा वोटिंग, ओवरऑल कितना वोटिंग है, फेवर में कितना है, अगेंस्ट में कितना, उतना लिखना है, खत्म. अब रेजोल्यूशन के टाइप्स. नाउ वी ऑलरेडी नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन.
Resolutions are either ordinary resolutions are either special resolutions. Ordinary resolutions are defined in section 114 of the Companies Act, and the special resolution is defined in section 114 subsection 2 of the Companies Act, right? Now what is the difference between ordinary and special resolution? Ordinary यानी general. हमारा जो बिजनेस है, लेट्स से हमारा बिजनेस फार्मास्यूटिकल का है, तो अलग अलग ड्रग्स परचेस करना, अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो टैबलेट्स जो बनती हैं, तो बहुत बार क्या करते हैं कंपनी, टैबलेट्स का जो हम जो सॉलिड टैबलेट जो कंज्यूम करते हैं उसका लिक्विड ड्रग बनता है, वो लिक्विड ड्रग हर उस टैबलेट के ऊपर जो कंज्यूमेबल होता है उसके ऊपर वो ड्रग अप्लाई करते हैं, फिर पैकिंग करके उसे बेचते हैं. तो हमारे एमआईडीसी में एक फैक्ट्री है जो सिर्फ टैबलेट बनाता है और जो हम कंज्यूम करते हैं, तो ड्रग्स नहीं बनाता. तो वो ड्रग्स बोलते उड़ता पंजाब मत समझना, पहले बोल रहा ड्रग्स का मतलब उड़ता पंजाब नहीं होता. एवरी मेडिसिन इज कॉल्ड एज अ ड्रग, राइट? एवरी मेडिसिन इज कॉल्ड एज अ ड्रग. सो हमारे एमआईडीसी में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनी सिर्फ वो टैबलेट्स बनाती है. दे डोंट प्रोड्यूस द ड्रग्स और द वैक्सीन और वट एवर मेडिसिन विच इज टू बी गिवन, राइट? जैसे कि पेन किलर में पैरासिटामोल होता है, पैरासिटामोल इज द ड्रग विच इज टू बी गिवन. तो वो क्या करते हैं, नाइस जैसी कंपनी, नाइस गोली पता है, नाइस गोली है, नाइस वो ब्रांड हो गया, बट इट इज अ पैरासिटामोल ड्रग. तो नाइस जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरर है, लेट्स से सन फार्मा इज द मैन्युफैक्चरर, तो सन फार्मा क्या करता है, एक तो वो खुद का जो टैबलेट होता है उसका प्रोडक्शन का रखेगा. लेट्स से अगर उनको लगता है कि ये अपन काम इतना नहीं कर सकते, अपन आउटसोर्स करते हैं, वी जस्ट पुट अ रिसर्च इनटू द ड्रग, तो वो क्या करते हैं, ऐसे परभनी में एमआईडीसी जैसी छोटी छोटी कंपनियां हैं, इनसे बल्क में टन्स में क्या करते हैं, टैबलेट्स खरीदते हैं, और टन्स में टैबलेट खरीदने के बाद उनके प्रोसेसिंग के ऊपर हर वो टैबलेट के ऊपर जितना परसेंटेज में वो ड्रग होना चाहिए वो हर वो टैबलेट के ऊपर रखते हैं, उसको स्टोरिंग उस हिसाब से करते हैं और बाद में पैकेजिंग करके उसको बेचते हैं. तो हमारा रेगुलर बिजनेस जो फार्मास्यूटिकल का है, उसके अंदर मान लो कोई सप्लायर बढ़ाना है, किसी सप्लायर को चेंज करना है, बिजनेस के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी लानी है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करना है, राइट? अब बिजनेस में कोई मशीनरी को रिप्लेस करना है, या फिर सेल्स टीम में कोई चेंजेस लाने हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव लानी है, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव लेना है, ऑडिटर को बदलना है, ये ऐसे जो मुद्दे हो सकते हैं, दिस आर ऑर्डिनरी पार्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ द बिजनेस. इसमें कुछ नया कुछ अलग निर्णय लेने की हम कोशिश कर रहे हैं क्या? आर वी ट्राइंग टू टेक समथिंग अदर? जो पॉइंट्स मैंने अभी बोले, प्रोडक्शन रिलेटेड कोई चीजें हैं, फिर उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़ी कोई चीजें हैं, उसके अलावा हमारा प्रोडक्शन हो गया, फिर हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया. अब ये सारे डिपार्टमेंट के कोई जो छोटे मोटे मुद्दे हैं जो पार्ट ऑफ डिस्कशन है मीटिंग के अंदर, कोई मार्केटिंग की टीम बनानी है बंदे रिप्रेजेंट के लिए, और मार्केटिंग का हेड अपॉइंट करना है. नाउ दीज पॉइंट्स आर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से जुड़ा जो डे टू डे का जो निर्णय होता है, जो बिजनेस के हमारे जो पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड है, जो हम डेली बेसिस पे डिसीजंस लेते रहते हैं, ऐसे सारे बिजनेस को हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी बिजनेस. व्हाट डू वी कॉल इट एज? तो इसके लिए बहुत ज्यादा बॉदर होने की जरूरत है क्या? नहीं. इसीलिए जो रोजाना बिजनेस ट्रांजैक्शन में चीजें आती है, जो रोजाना बिजनेस ट्रांजैक्शन में चीजें आती हैं, दे ऑल आर पास्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. द डिसीजंस व्हिच आर नॉर्मली टेकन बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हैव टू बी पास्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय मोर देन 50%. Yes or no? What is the voting required for passing an ordinary resolution? It should be more than 50%. That means 51% and above उसका वोटिंग होना चाहिए. 50% से अगर कम है या 50% है, अगर 50% है तो वह डेडलॉक हो जाएगा. वहां क्या हो जाएगा? डेडलॉक. वहां क्या हो जाता है? डेडलॉक होता है. तो वहां पे डेडलॉक होने के बाद कास्टिंग वोट का पावर किसके पास होता है? चेयरमैन के पास. किसके पास होता है कास्टिंग वोट का पावर? चेयरमैन. अगर डेडलॉक नहीं है तो चेयरमैन इज नॉट अलाउड टू पुट his vote or cast his vote on any particular aspect. He can vote only when there is a deadlock in the management, right? So whenever we are going to transact an ordinary business, day to day business decision को हम जब हम transact करेंगे तो उसके लिए हमें ordinary resolution अगर हम पास करेंगे तो भी चलेगा. लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन की, कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर जब हम निर्णय करना चाहते हैं जो बहुत डिफरेंट है,
जो हमारे रेगुलर बिजनेस का पार्ट नहीं है, जो बहुत रेयरली हम ऐसे निर्णय लेते हैं, तो ऐसे जो रेजोल्यूशन है, ऐसे जो पॉइंट्स, ऐसे जो डिसीजन है, these are special transactions for the business. These are special transactions for the business. Let's say our company's name is Sun Pharma Limited. हमारे कंपनी का नाम क्या है? Sun Pharma Limited. Now there is an agenda in the meeting where we want to change the name from Sun Pharma Limited to Moon Pharma Limited. हमें क्या करना है? सन फार्मा लिमिटेड से हमारे कंपनी का नाम क्या करना है? मून फार्मा लिमिटेड करना है. हम 10 साल से एग्जिस्टेंस में हैं. 10 साल से हमारी मार्केट में आइडेंटिटी क्या नाम से है? सन फार्मा से. अब इमीडिएटली हम हमारे आइडेंटिटी किधर लेकर जाना चाहते हैं? मून पे. सन से हम कहां जा रहे हैं? मून. सो डू यू थिंक ये बात हर किसी मेंबर को हजम होने वाली रहेगी? इज इट अ नॉर्मल डिसीजन विच एवरी कंपनी वुड टेक? इट्स अ डिफरेंट डिसीजन, right? Let's say the company wants to change the liability clause. They want to change the liability from limited to unlimited. They want to change the liability of the company, the members from limited to unlimited. Do you think it's a normal decision which has been taken? No. You already know whatever clauses are mentioned in the MOA. If you want to alter any of the points in the MOA, we need to pass a special resolution. We need to pass a special resolution. मीन्स अब जैसे आप फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं, लेट्स से वी वांट टू डाइवर्सिफाई. डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हम चाहते हैं कि हम फार्मास्यूटिकल के साथ साथ फर्टिलाइजर का बिजनेस भी करें. 10 साल से हम दवाइयां बना रहे हैं. अब हम वो तरह की दवाई बनाना चाहते हैं जो इंसानों पे नहीं, पौधों के ऊपर या प्लांट के ऊपर या खेतों में काम हो सके. वी वांट टू मूव टू फर्टिलाइजर. इट्स अ न्यू पर्टिकुलर बिजनेस. So do you think the decision of diversification is a normal decision for the company, or it's a special transaction which is to be talked about? It's a special transaction which is to be talked about. Changing the name from sun to moon, or taking a decision on the diversification. Diversification from pharmaceutical company also diversifying to fertilizers company. Now these decisions, my dear friends, are special transactions. These decisions are special transactions, and whenever we want to take a decision regarding a special transaction, what we have to do is we need to have a special resolution which is being passed, and special resolution is passed if the voting is more than 75%. whatever point in the agenda जिसके ऊपर special resolution पास होना है, उसके अंदर वोटिंग जो फेवर में है, it should be more than 75%. if it is less than 75%, the resolution is not passed. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में अगर 50 से ज्यादा है तो रेजोल्यूशन इज पास. अगर 50 या 50 से कम अगर वोटिंग है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं होता. ये है टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन. टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन दो तरह के होते हैं. एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दूसरा होता है स्पेशल रेजोल्यूशन. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन डे टू डे बिजनेस डिसीजन के लिए लिया जाता है, यूज किया जाता है. और बिजनेस का जो स्पेशल ट्रांजैक्शन होता है, जो रेयर डिसीजन या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रही है कंपनी, उसके लिए हम स्पेशल रेजोल्यूशन लेते हैं. जैसे कंपनी की पूरी पुरानी जो प्लांट एंड मशीनरी, अब 10 साल से हमारी कंपनी चल रही है, तो बड़ा ऑब्वियस 10 साल के अंदर टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है? आउटडेटेड हो जाती है. Now the company wants to take a decision regarding replacement of all the machinery with the new one. Is it a normal or a simple decision which is to be taken? No, it's a special transaction which is to be talked about. So whenever we are trying to replace the entire machinery line with a new technology, a special resolution for same also has to be passed, because it's a special business, because it is a special business or a special transaction जिसके ऊपर काफी सोच समझकर हमें निर्णय लेना है. इसीलिए वहां पे ज्यादा लोगों का हाँ होना जरूरी है. Is it okay and fine? Right? चलो let's have a reading of ordinary and special resolution. Ordinary resolution section number 114. A resolution which is passed by simple majority is called as ordinary resolution. When more than 50% votes, सबसे important क्या है? 50%. More than 50%. When more than 50% of votes should be in favor of the motion, an ordinary resolution need not to be submitted to the register of the companies. The notice of the meeting need not require to explain the particulars of ordinary resolution. We have already seen in the points of the agenda. When we prepare the agenda of the meeting, notice के साथ हम क्या भेजते हैं? नोटिस के साथ हम क्या भेजते हैं? एजेंडा. नोटिस के साथ हम क्या भेजते हैं? एजेंडा. अगर आपको याद है, मैंने बोला था कि जब हम एजेंडा ड्राफ्ट करते हैं, एजेंडा ड्राफ्ट करते वक्त जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं
उसमें से कोई पॉइंट जनरल बिजनेस से रिलेटेड है जिसके ऊपर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, क्या उसका हमें बहुत एक्सप्लेनेशन एजेंडा में देने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन जब हम एजेंडा स्पेशल ट्रांजैक्शन का कर रहे हैं, लेट्स से डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल टू फर्टिलाइजर, तो उसके बदले में हमें क्या देना होगा? पूरा नोट और पूरा एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट और एजेंडा के साथ अटैच करना होगा, जहां पे ये फर्टिलाइजर के जो निर्णय पे हम जाना चाहते हैं उसके बारे में क्या क्या चीजें सोच के रखी है कंपनी ने, क्या फाइनेंशियल्स होंगे, आगे का प्रोजेक्शन क्या होगा, क्यों ये कंसिडरेशन में लिया जा रहा है, उसका पूरा डिटेल लेखा जोखा आपको एजेंडा में नोटिस के साथ देना होगा, ताकि आते वक्त मेंबर प्रिपेयर हो क्या है। राइट? याद आया कुछ? मैंने कहा था कि जब हम एजेंडा ड्राफ्ट करते हैं, एजेंडा जब बनाते हैं, तो जब हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से रिलेटेड कोई पॉइंट्स अगर एजेंडा में फ्रेम करते हैं तो उसको सिर्फ सिंपल आपको एजेंडा में अगर कोट कर दो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन जब हम स्पेशल बिजनेस की बात करते हैं जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगने वाला है, तो एजेंडा में सिर्फ उसको मेंशन करके नहीं चलेगा, उसके साथ साथ एजेंडा में आपको एक स्टेटमेंट अटैच करना होगा जो उस पर्टिकुलर स्पेशल ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी मेंबर को दे रहा हो, जिसे पढ़ के मेंबर प्रिपेयर होकर आ सके और अपनी राय कंपनी की मीटिंग में रख सके। याद आया कुछ? हाँ या ना? राइट? The notice of the meeting need not to require explain particulars at the ordinary resolution. For example, approval of the statutory report, alteration of share capital, declaration of dividend, approval of the directors, auditors report, financial accounts, election of the directors, appointment of secretary, auditor, and fixing of their consideration. These are ordinary business decisions which have to be taken in the normal course of business. So we don't have to explain these points in detail in the agenda, and we also don't need to have a voting which is more than 75%. Voting, a normal majority of more than 50% is sufficient for ordinary business transaction, as we can pass this decision by taking an ordinary resolution which is passed by having a voting of more than 50%. Is it okay and fine? किसी को पूछना है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बारे में? अगला पॉइंट आता है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन की वोटिंग कितनी है? 75%। इतनी मेजोरिटी क्यों लेना चाह रहे हैं? क्योंकि डिसीजन जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। किसी भी कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णय में 3/4 मेजोरिटी ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है कोई ना कोई तो विरोध करने वाला ही रहेगा। देयर विल बी सम हु वुड बी फॉर एनी रीजन, लेट्स से उनको मालूम है कंपनी का फायदा है, फिर भी वो विरोध करेंगे। क्यों? तो उनको विरोध करना अच्छा लगता है। नेगेटिविटी, वो बोलता है रॉकस्टार में रणबीर कपूर, मार्केट में नेगेटिविटी बिकती है, ओ सड्डा हक इतने रख। राइट? कुछ कुछ लोग रहते हैं उनको कुछ लेना देना नहीं, दे जस्ट वांट टू गो अगेंस्ट एवरीथिंग, बाकी कुछ मालूम नहीं, बस नो। क्यों तो मालूम नहीं, लेकिन नो। राइट? तो ऐसे सिनारियों में ऐसे नेग्लिजेंट वोटर्स का कंपनी के डिसीजन के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। इसलिए 3/4 मेजोरिटी इज ऑल्सो मेजोरिटी और मोर देन मेजोरिटी। अच्छा खासा हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों ने, अगर 75% से ज्यादा अगर वोटिंग आती है, सो वी कैन कंसिडर कि मैक्सिमम लोग जो है इस निर्णय के साथ जो है अपनी राय रखते हैं। आया ना? इसलिए स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कंडीशन कंपनीज एक्ट में दी गई है, अ स्पेशल रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड इफ द वोटिंग इज passed by a resolution, if the voting in favor of the resolution is by 3/4 of the majority or more than 75%. Right? The resolution which is passed by special majority is called as special resolution. It is passed by 3/4 or 75% majority. The number of voters in favor of the motion should be 3 times of the vote cast against the motion. Purpose of passing a special resolution should be mentioned in the notice of the meeting. A special resolution is passed in the general meeting only. Notice of the special resolution has to be given at least 21 days before the meeting. A copy of the special resolution must be filed with the Register of Companies through e-filing on the MCA portal within 30 days of passing the special resolution. The copy of the ordinary resolution need not to be submitted. The copy of the ordinary resolution need not to be submitted to the ROC, but the copy of every special resolution, have to be compulsorily passed. Have to be compulsorily passed at the meeting. Is this okay? स्पेशल जो मीटिंग में जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं उसकी हर कॉपी आरओसी को सबमिट होनी चाहिए। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो पास हो रहा है मीटिंग पे उसकी कॉपी जो है हमें आरओसी को सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों करना है सर? क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर हम मेजर डिसीजन ले रहे हैं जिसके अंदर कंपनी में मेजर चेंजेस आने वाले हैं, तो ऐसे मेजर चेंजेस के बारे में जानकारी आरओसी को होना जरूरी है। इसीलिए स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास हो रहा है उसका कंपलसरी फाइलिंग कहां होना चाहिए? आरओसी के पास। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को हमें
किसी के पास भी सबमिट करने की जरूरत नहीं है. Is this okay and fine? Now examples of the special resolution. Change in the name of the company, section 13. You know, if you change the name clause of the MOA, it requires special resolution. Shifting of registered office, change in the address clause of MOA, again it requires special resolution. Alteration in the object clause, changing the object of the company. Objective was earlier producing pharmaceuticals. Now we are changing the objective to also produce fertilizers. So we are trying to change the object clause of the company. Objective of the company was to produce pharmaceuticals. Now we are trying to expand into diversify into fertilizers. So there is change in the objective of the company. There is change in the objective clause of the MOA, and change in the objective clause of the MOA requires special resolution. Reduction in the authorized share capital of the company. Changes, increase or reduction in the authorized share capital of the company will again lead to change in the capital clause of the MOA, for which again we require a special resolution which is to be passed by majority. Alteration in the articles of association again requires a special resolution which is to be passed at the annual general meeting. Articles जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें से किसी भी आर्टिकल में कुछ अगर आपको बदलाव या चेंज करना है तो उसके लिए भी फिर से हमें क्या लगेगा, क्या लगेगा भाई, क्या लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन. सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर नॉट part and parcel of a normal business. These are special transaction, or you can call them as extraordinary transactions which we don't normally take in our regular business. Hence a special resolution for the same has to be passed, which is to be proved by 3/4 of the majority or a voting of more than 75%. So this is what we have on resolution and the types of resolutions, that is ordinary resolution and special resolution. Yes, any doubt? Any doubt on this? अगली बात करते हैं resolutions requiring special notice. Now there are several other resolutions which require a special notice. There are several other resolutions which require special notice. Some resolutions require special notice as per the Companies Act or the Articles of Association of the company, and such resolutions are called as resolution requiring a special notice. There are certain transactions as mentioned in the Companies Act or mentioned as per your own Articles of Association that a special matter, if it is considered by the company in a particular meeting, a special notice of same should be given. So इससे हमें ये समझ में आता है, कोई अगर ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन है जिसके लिए स्पेशल नोटिस देना जरूरी है, ऐसा अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया गया है तो बट ऑब्वियस वॉट एवर इज गिवन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैज टू बी फॉलोड. वॉट एवर इज गिवन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैज टू बी फॉलोड. एंड फॉर ट्रांजैक्टिंग सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, लेट्स से अभी हम चेंज इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज बोल रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू चेंज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी फ्रॉम फार्मास्यूटिकल टू फर्टिलाइजर, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया गया है, if the company is trying to change the object clause of the company, the special notice for same should be issued. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ है. इसके मुताबिक अगर किसी एनुअल जनरल मीटिंग में अगर हम ऑब्जेक्टिव फ्रॉम फार्मास्यूटिकल टू फर्टिलाइजर का जा रहे हैं, इफ ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम फार्मास्यूटिकल टू फर्टिलाइजर, इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ आवर कंपनी, हमें क्या करना होगा, स्पेशल नोटिस उसका जारी करना होगा. For taking the decision, special notice of same should have to be given. अब special notice कब देते हैं will depend on what is given in the articles of association or what is prescribed as per the Companies Act. कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहाँ Companies Act खुद कहती है कि इस मुद्दों के लिए स्पेशल नोटिस दो, और उसके अलावा जिन जिन मुद्दों के ऊपर स्पेशल नोटिस देना कंपलसरी है, जिनके बारे में आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, तो उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा. लेट से आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ दिया ही नहीं है स्पेशल नोटिस के बारे में, तो आपको स्पेशल नोटिस देने की जरूरत नहीं है. सिर्फ उन्हीं चीजों की स्पेशल नोटिस देनी होगी जो कंपनीज एक्ट ने आपके ऊपर कंपलसरी की है. इज इट ओके? स्पेशल नोटिस resolution may be ordinary or special resolution. A proposer of the motion has to give a special notice at least 14 days. At least 14 days to the company. The company should be given a notice of that resolution to all the members at least 7 days before the meeting.
अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग रेजोल्यूशंस रिक्वायर स्पेशल नोटिस। तो यहाँ एग्जांपल देख लेंगे तो तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कौन से मुद्दे हैं। पहला पॉइंट है रेजोल्यूशन टू अपॉइंट अ पर्सन एज ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर। लेट्स से इशिता वाज द ऑडिटर ऑफ आवर कंपनी, इशिता वाज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, लेकिन कोई कारण से श्रेया को, संस्कृति को इशिता का काम पसंद नहीं आया। दे आर नॉट हैप्पी विद द फ्रेंड्स वर्क एंड दे से कि इन्होंने जितना ड्यू डिलीजेंस के साथ काम करना चाहिए उतना ड्यू डिलीजेंस अपने काम में नहीं दिखाया। सो दे फील दैट इशिता इज नॉट करेक्ट फॉर द जॉब एंड दे डिसाइडेड दैट इशिता की जगह पे हम ईशा को अपॉइंट करना चाहेंगे एज ए ऑडिटर ऑफ द कंपनी। नाउ देयर इज अ प्रपोजल रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। अब हम वो मुद्दों की बात कर रहे हैं जहां पे स्पेशल नोटिस देना कंपलसरी है एज पर द कंपनीज एक्ट। इन मुद्दों के अलावा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर स्पेशल नोटिस देना जरूरी है अगर आपने लिखा है तो उसके ऊपर आपको कंपलसरी स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कौन फ्रेम करता है? प्रोमोटर्स फ्रेम करते हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हाँ या ना? तो फिर वो उस वक्त तय करेंगे कौन से मुद्दे के ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन देना है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक जिन जिन मुद्दों के ऊपर स्पेशल नोटिस देना जरूरी है उतने मुद्दों के ऊपर आपको स्पेशल नोटिस देना होगा। अदर देन दैट these are the different points on which the company act states that you have to give a special notice. First point is appointment of an auditor other than the retiring auditor. Let's say in this particular annual general meeting, every annual general meeting there has to be appointment of the auditor हर साल। और नॉर्मली कंपनी जो ऑडिटर के साथ उनका सेट हो जाता है हर साल उसी को रीअपॉइंट करते रहते हैं। लेकिन ये साल इशिता के काम से संस्कृति और श्रेया खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। नो, बात जमी नहीं। तो इन दोनों का ये प्रस्ताव है कंपनी को ये प्रस्ताव है कि अभी जो ये कंपनी में इशिता अभी रिटायर होने वाली है, लेट्स नॉट रीअपॉइंट इशिता, वी गिव नेम ऑफ ईशा वट्टमवार फॉर अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर इन प्लेस ऑफ इशिता। सो दिस इज अ रेजोल्यूशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ईशा इन प्लेस ऑफ इशिता। दिस इज अ रेजोल्यूशन for appointment of Isha in place of Ishita, who is a retiring auditor. Now such kind of business, when there is an appointment of a new auditor in place of the retiring one, it requires a special notice. It requires a special notice. So this special notice should be given to the company by Sanskruti and Shreya at least 14 days prior. Annual general meeting का notice का time period कितना है? क्लियर 21 डेज, 21 क्लियर डेज। याद है कितना है? 21 क्लियर डेज, राइट। तो इस सिनारियो के अंदर 14 डेज प्रायर नोटिस इन दोनों को देना पड़ेगा। इन दोनों को कितने दिन प्रायर देना पड़ेगा? स्पेशल नोटिस के बारे में नोटिस कितने दिन पहले देना पड़ेगा? 14 डेज प्रायर, और वहां से 7 दिन पहले कंपनी को देना पड़ेगा, यानी 21 में मैचिंग है, 21 डेज में मैचिंग है। स्पेशल नोटिस के लिए जो भी रेजोल्यूशन या प्रस्ताव श्रेया, अभी जैसे हमारी मीटिंग है 21 क्लियर डेज 1 जनवरी 2020, 21 क्लियर डेज कितने होते हैं? डेट ऑफ नोटिस काउंट नहीं होता, डेट ऑफ नोटिस काउंट नहीं होता, डेट ऑफ मीटिंग काउंट नहीं होता। तो 23 को मीटिंग होगा, हाँ, 23 जनवरी 2020। अपना पॉइंट कितना है? 21 दिन। इन्होंने 14 डेज प्रायर दे देनी चाहिए, तो ये दिन छोड़ के 14 डेज पकड़ो, ये दिन छोड़ के 14 डेज पकड़ो, 15 नहीं बोल रहा मैं, 12, 13, 14, 15, 16, सॉरी कहां पे था मैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 15। तो 15 जनवरी 2020, यहां से आगे 14 और यहां से आगे 7 दिन, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, नॉट सॉरी 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। अपने आप 23 तारीख को हमारी मीटिंग आ गई। हमने सिर्फ इसमें ब्रेकिंग की है 14 और 7 में। तो इन लोगों का नोटिस किस तारीख तक आ जाना चाहिए? 1 तारीख तक। इन्होंने कंपनी को नोटिस का बाद दे देना चाहिए 1 तारीख को, तो वहां से आगे 14 डेज और वहां से आगे 7 दिन। समझ में आया?
इज इट ओके? सो पहला पॉइंट क्या है? रेजोल्यूशन टू अपॉइंट अ पर्सन एज ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर्स. इसके अंदर हमें स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा. सेकंड, resolution providing that the retiring auditor shall not be reappointed. Let's say they don't want to appoint Isha, but they also don't want Ishita to get reappointed. Let's remove Ishita. Let's decide on who's to be appointed as the new auditor later on, but we are not going to continue with Ishita. Again, the same process has to be followed. Special notice is required. Special notice normal notice के जगह पे उसके अंदर दे दे. It's a special notice brought to the given to all the members that a special transaction regarding non-reappointment of auditor or appointment of a new auditor in place of retiring auditor. तो जब कभी भी नोटिस देते हैं तो उसके ऊपर स्पेशल टाइटल होना चाहिए कि ये नोटिस जो दी जा रही है आपको ये क्या है, एक स्पेशल नोटिस है, ताकि फिर मेंबर को स्पेशल नोटिस का हेडिंग देख के समझ सके कि ये बहुत जरूरी नोटिस है और इस वाले मीटिंग में जो ट्रांजेक्शन होने वाले वो काफी जरूरी है, क्योंकि ऑडिटर इज द वन जो आपके सामने कंपनी का सही झूठ रखेगा. इसके लिए नॉर्मली एक ट्रांसपेरेंसी होने चाहिए कंपनी में, इसलिए ऑडिटर को लेकर जो मुद्दे उसको काफी डेलिकेटली हैंडल किया जाता है. रेजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर, रेजोल्यूशन टू अपॉइंट अ डायरेक्टर अदर देन द रिटायरिंग डायरेक्टर. लेट्स से कंपनी में हम 5 डायरेक्टर हैं, हम 5 में से डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन. यस, व्हाट इज द हाउ मेनी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन? It's not 1/3. Directors liable to retire by rotation. देखो खोलो पीछे जल्दी. At every annual general meeting, how many directors are liable to retire by rotation? कितनी %? 1/4, 2/4, 3/4, ज्यादा है कुछ? If I am right, 3/4 I guess. 3/4 of the directors are liable to retire by rotation. उसमें से फिर जो डेट वाइज जो सबसे पहले अपॉइंटमेंट होगा वो उस मीटिंग में रिटायर होगा, है क्या बरोबर? डायरेक्टर्स liable to retire by rotation. How many directors are liable to retire by rotation? Directors liable to retire by rotation. हाँ, एनुअल जनरल मीटिंग में 1/3 है ना. पेज नंबर क्या है? 80. So out of the entire board of directors, 1/3 of the directors are liable to retire by rotation. इसलिए मैं पूछा ना क्या है, 1/3 है, 2/3 है, 3/4 है, 1/3, right? So at every annual general meeting, 1/3 of the directors are liable to retire by rotation, right? 1, 2, 3, 4, 5 और ये जुली 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑफ अस. इसका 1/3 कितना हुआ? 2 डायरेक्टर्स. तो हम 6 में से जिनकी अपॉइंटमेंट पहली हुई है वो 2 डायरेक्टर इस पर्टिकुलर एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर होंगे. लेट्स से वो मैं और जूली है, हम दोनों हैं, एंड वी आर बाउंड टू रिटायर एट दिस पर्टिकुलर एनुअल जनरल मीटिंग. कंपल्सरी हैव टू रिटायर बिकॉज डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन. सबकी साथ में रहेगी तो फिर उसके अंदर वो उसके हिसाब से कंसिडरेशन, यानी 2 उसके अंदर कंसिडरेशन रहेगा. सेम डेट रहेगा तो कोई भी 2 उसमें से निकल जाएंगे. अगर साथ में नहीं है तो फिर डेट वाइज उसका निकाला जाता है. चिट्टी विट्टी नहीं रहेंगे बेटा, जो जैसे निकलेगा फिर वो उसके हिसाब से देखेंगे. अभी के लिए समझ ले कि अपन दोनों का अपॉइंटमेंट पहले हो चुका है तो हम दोनों बाहर जाने वाले हैं. अब हम दोनों को रीअपॉइंट कंपनी कर सकती है. अगेन वी कैन बी गेट रीअपॉइंटेड. रिटायरिंग डायरेक्टर कैन ऑल्सो बी रीअपॉइंटेड. लेकिन कंपनी बोलती है सर का काम अच्छा नहीं है, सर को बाजू करो, ये जूली को तो रहने दो, सर को बाजू करो, सर की जगह पे हर्ष को ले लो. शर्मा तो है ही है, खाली दिनेश की जगह हर्ष है, क्या फर्क पड़ता है. हाँ, तो अब ये सोच रहे हैं कि रिटायरिंग डायरेक्टर को हटाओ और उनकी जगह पे कोई एक नए डायरेक्टर को ले लो. अगेन दिस विल रिक्वायर अ स्पेशल नोटिस. whenever we are trying to appoint a director in place of a retiring director, a new director in place of a retiring director, again it will require a special notice. So all the members have to give a notice 14 days prior to the company that we wish to appoint Harsh in place of Dinesh sir, and company has to give it 7 days prior. So in all 21 clear days वो हो जाने चाहिए. Appointment of a person as a director
in place of the director removed. Now in case of retiring director, अगर किसी और डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर रहे हो, नए डायरेक्टर को, तो उसके लिए स्पेशल नोटिस लगता है. लेट्स से कंपनी में काम का जूली का अच्छा नहीं, इसको निकाल दिए. We have removed. He is not retiring. He is retiring in the next annual general meeting. But whatever the way he has behaved, the way he has conducted the business are not proper and not in the interest of the company. So ऐसे डायरेक्टर को कंपनी के बोर्ड में रखना कंपनी के लिए हानिकारक होगा. सो इस मीटिंग के अंदर हमने निर्णय लिया कि इसको एक तो निकालना है और इसकी जगह पे हर्ष को लेना है. सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो अगेन अ स्पेशल नोटिस एज पर द कंपनीज एक्ट इज रिक्वायर्ड. इज दिस ओके? So these are the 5 instances prescribed by the Companies Act when a special notice is compulsorily required to be given. Is it okay and fine? Right? Next point है resolutions requiring registration. Resolutions requiring registration. Resolutions which are required to be registered with the register of companies are called as resolution requiring registration. Resolution should be filed with the register within 30 days of its passing. Examples of such resolutions are all special resolution, as we have already seen, have to be submitted to the ROC. Resolution made by the board of directors regarding appointment or reappointment of the managing director. बोर्ड मीटिंग के अंदर जब हम मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट को लेकर कोई निर्णय बोर्ड मीटिंग में ले रहे हैं, दैट रेजोल्यूशन also has to be registered or submitted to the ROC. Resolution made by the members regarding dissolution of the company. कंपनी को अब डिसॉल्व करना है, कंपनी को बंद करना है. डू यू थिंक इट्स अ स्मॉल डिसीजन, इट्स अ मेजर डिसीजन टेकन? मेजर डिसीजन टेकन. तो जो मेजर डिसीजन बोर्ड मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में लिए जा रहे हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में तो सारे जो निर्णय जिसके ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन आ रहा है वो सभी के सभी हमें कहाँ इन्फॉर्म करना है? आरओसी को. बोर्ड मीटिंग के अंदर से जहां हम मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट या रिमूवल की बात कर रहे हैं उसकी जानकारी, और कंपनी को बंद करने की अगर कोई डिसीजन लिए जा रहे हैं तो ऐसे मेजर डिसीजन के सारे निर्णय या रेजोल्यूशन की कॉपी कहाँ रजिस्टर हो जाने चाहिए? आरओसी के पास. इज दिस ओके? क्या हमने यहाँ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पढ़ा? नहीं, बिकॉज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन विद द आरओसी. इज इट ओके? इज इट ओके? नेक्स्ट पॉइंट, resolution by circulation. When directors to take the important and urgent decision not have sufficient time to call a meeting, at that time a draft resolution is prepared and forwarded to all the directors to pass the resolution. It is called as resolution by the circulation. Resolution by circulation is allowed in case of a board meeting. Let's say the board of directors want to take a decision regarding the dividend, and but they feel कि एनुअल जनरल मीटिंग के लिए 21 क्लियर डेज है, उसके हिसाब से उसकी नोटिस कब जाने चाहिए? 1 जनवरी को. अब 25 क्रिसमस हो गया, उसके बाद संडे आ गया, 27 को कंपनी खुल गया, अब 4 दिन है. 4 दिन के अंदर बोर्ड मीटिंग कैसे ले? इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट इट ऑन such a small notice. So what they do, they pass the resolution and that circulate among the directors and they take their vote in favor or against the resolution. जो रेजोल्यूशन सर्कुलेट हो रहा है डायरेक्टली विदाउट कंडक्टिंग अ मीटिंग, इस सर्कुलेट किए गए रेजोल्यूशन पे अगर मेजोरिटी आ जाती है तो उस पॉइंट को कंसिडरेशन करके हम 1 तारीख की जो नोटिस देंगे एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, अगर उसके अंदर लेट से मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है, हम 6 डायरेक्टर्स ने कहा है कि यस, 6 की 6 ने कहा है कि यस, जो डिविडेंड डिक्लेयर करने का जो रेजोल्यूशन सर्कुलेशन के द्वारा पास किया गया है, आई एग्री, मैंने हम 6 की 6 ने कहा यस वी एग्री टू द पॉइंट. So this resolution of paying dividend or declaring dividend is passed by circulation. Whenever a resolution is passed by the boards or board of directors without conducting a meeting by circulation among the directors is called as resolution passed by circular. Is it okay? But it is allowed only in case of board meeting, not allowed in case of general meeting. Right? Circular resolution is allowed only in case of board meeting. It is not allowed in case of जनरल मीटिंग. इज इट ओके एंड फाइन? समझ में आया? तो हमने क्या किया, डिविडेंड का जो निर्णय लेना था उसके लिए बोर्ड मीटिंग नहीं ली, उसकी जगह पे क्या किया, सर्कुलर बनाया रेजोल्यूशन का, वो सब 6 डायरेक्टर को सर्कुलेट किया, हम सब लोगों 6 लोगों ने हाँ बोल दिया, 28 तारीख को सर्कुलेट हो गया, वो फाइनल हो गया. 1 तारीख के कंपनी के नोटिस के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस के अंदर उसका पॉइंट डाल दिया दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टेकन अ डिसीजन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. बोर्ड मीटिंग हुई क्या? नहीं, डिसीजन हो गया. कैसे हुआ? by circulating the resolution. Such kind of decision which is taken by circulation of the resolution is called as resolution by circulation. It is allowed and its immunity only given to the board of directors. Next point is validity of a resolution.
Annual general meeting can't be postponed. It has to be conducted within 6 months of the end of the financial year. 6 months is 30th of September. So it has to be done by that date. उसके पहले हिसाब से अगर कहीं गड़बड़ हो जाती है तो फिर उसके लिए सर्कुलेशन, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होता है. एनुअल जनरल मीटिंग को जो है साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए एज पर द लॉ. अगर नहीं होती है तो फिर उसके लिए अलग से फाइन पेनल्टी अलग है. राइट सर आए तो मुझे बोलना, पंकज सर अगर आए तो. आ गए क्या? कितना बचा अपना? अच्छा खासा बचा है. ठीक है. अभी आप लोगों का टाइमिंग कैसे कैसे आज का? 12:30 बजे. अच्छा बाद में फिर पेपर और वो है. ठीक है ओके. तो आज तो ये खत्म होते नहीं रहा और ना इसके आज कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं. ठीक है कोई बात नहीं. अगर मैं छुट्टी पे भी हूँ तो आने के बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है.